हेलो फ्रेंड्स, ए वार्म वेलकम टू अनसरकारी। आई एम विकास भारद्वाज और हम बात करते हैं कि दैट हाउ यू आर टेकिंग अप डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ जनरल स्टडीज, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू एंड ऑब्वियसली सर्टेन एलिमेंट्स फॉर द ऑप्शनल एग्जाम, because examination demands certain kind of approach and clarity. So let's start with the Indian Express and understand that what is actually we can take away from the examination. Oh, there is a big ad on the front page, and obviously it is showing about its key features. You have to understand and learn whether this examination requires classes or not. Obviously, systematic subject sequence is required and well-framed modules is required, but I believe they must be according to individual candidates' understanding. Comprehensive coverage is a very vague word, and also, latest, updated, well-researched is also very, very subject to understanding. And unique concept is also what is unique about it. Then you have to understand if something is unique, it cannot be mass-based and always driven by crazy ideas of consumption. The culture of consumption is not for the civil services. It is becoming a product of mass consumption, but then success will elude for a long, long time. So definitely we also run different courses, we also run different plans, we also run different programs, but according to candidates' ability, according to their commitment and also success in the examination. So do join us for all different kind of optionals, general studies and what not related with exam. So, starting with the understanding that what it takes to crack the exam is great slogging, is great understanding, is systematic micromanagement, which is not taught as such through books, but it is much more beyond than books. So, in this context, there is no answer to what India should do in terms of policy challenge when we are finding that rupee is breaching the level of 81. भैया 81 रुपए हो गया है $1, तो क्या करें? क्या अपनी वैल्यू को खुद फाइंड करेगा कि हम जो है फॉरेक्स बर्न करते रहें? सो दिस इज द डिलेमा. This is the dilemma which RBI is having. What to do? Excessive intervention it should do, and for how long? Because more you are intervening, then more there will be different kind of developments. And even this breach, you have to understand: is it happening because of our own reasons or because of the global circumstances, and so on and so forth. So we are going to talk about it. We are trying to understand that rupee versus dollar ka khel to abhi aayega. Where is the solution? So throughout our different discussions through articles, I will try to bring up different elements, and they will be helping you to understand different nuances as far as dollar versus rupee is concerned. And the key point in this right now we can take is that the depreciation is taking place, but then depreciation is taking place not up to the extent where we are really, our economic fundamentals are being shaken, and it is volatile. Always remember in this context that a large part of the inflation is imported, because whatever we are importing, it is bringing along with its own consequences, especially in terms of crude oil, petroleum and so on. So what should be the better tool? क्या टूल होना चाहिए इसको रोकने के लिए? A depreciating rupee will make imports more expensive. Import बहुत ज़्यादा expensive होंगे obviously, तो उससे demand पर भी फर्क आएगा. Demand पे फर्क आएगा, then it will have its own consequences. So that is why monetary policy is one of the tools. आप hike कर सकते हैं rates को, लेकिन ये क्या एकदम में real solution है? That is what you have to keep on thinking, and you will also be linking with it. हमारा manufacturing sector how it is going, हमारा IT sector how it is doing, हमारा service sector, sunrise sector, consumption and so on. आपको अपने आप ही ideas आने शुरू हो जाएंगे. So please do not stop thinking in a constructive manner, and I'm sure with consistent practice there can be a mindset, there can be an idea, you will be able to judge clearly. Coming to the second point, that there was a news item where a food delivery executive was slapped by army major, and army major claimed कि पता नहीं गांव के गवार कौन से गांव से आ जाते हैं, and he suddenly slapped and punched him, and he threatened also him to put in jail, and for some time, say maybe for 40-45 minutes, he was also confined over. तो ये कौन कर रहे हैं? मेजर साहब कर रहे हैं. It was happening obviously in Gurgaon, one of the high-rise societies, Bestech Park View Ananda Society, as if बाकी लोग जो नहीं रह रहे हैं वो सोसाइटी में रहते ही नहीं है. तो शुरू में FIR भी नहीं हुई, but what I want to tell you over here that please understand the changing behavioral aspect of society. Please give due dignity. Please give due value to what is required in society through your answers and through your uh, preparation for exam. Otherwise आपको भी बाद में अगर बन भी गए तो frustration होने वाली है. So the point is that
this has been taken up by जो कोर्ट में ये बात गई, तो then it is being taken up in the court, and that definitely we are talking about it here, then you can understand that things are changing. So the point is that in sociology, in terms of ethics, जिस टाइप के केस स्टडीज एग्जामिनेशन डिमांडिंग, दे विल बी वेरी वेरी मच फ्रॉम द रियल लाइफ. तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये चीज कैसे करके चेंज हो सकती है. प्रोबेबली रोल मॉडल इसमें एक एग्जांपल आ जाता है. सेकेंडली इसमें एक इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज की बात आ जाती है. एंड देन एज इट इज सेइंग दैट इट इज अ फाइट फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड नॉट फॉर द स्लैप एंड ऑल दैट. सो दैट मीन्स काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता. But these high society people do not understand this. Okay. So the point is, it is about dignity. So you have you want to you want to be part of the civil services later on. So obviously आप भी सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर बनने के लिए नहीं जा रहे हैं, और उनका कोई रोल भी नहीं है. It is basically a myth and a wrong picture which is presented. So do not perpetuate the same myth. Be the game changer with your smart work. Coming further, अगर हम बात करें that how state governments they promote their own ideas after proclaiming that we are working for the people and the masses. तो आप देखो जैसे झारखंड के काफी ऐड हमने देखे हैं, लेकिन it is shown over here that सरना आदिवासी धर्म कोड पारित करने के लिए सरकार को भेजा हुआ है. नियुक्तियां की गई हैं. जनजातीय महोत्सव मनाया गया. पारा शिक्षक और आंगनवाड़ी बहनों को पुरानी मांगों का समाधान किया. आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली दी. तो आप बार बार जब आप हर स्टेट का अलग अलग पढ़ते हैं, तो आपको आइडिया लग जाता है कि यार हर स्टेट में हो क्या रहा है, हर स्टेट का मांगा क्या जा रहा है. छात्रवृत्ति भी दी जा रही है, पेंशन भी दी जा रही है. तो क्या ये है, यही है वेलफेयर के, और इसके पीछे हो कैसे रहा है. दैट इज व्हाट, इफ यू अंडरस्टैंड, देन योर एग्जांपल्स एंड योर आइडियाज विल बी जनरेटिंग ऑन योर ओन वेरी वेरी फास्ट. मुख्यमंत्री पशुधन और कृषि ऋण माफी योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना. So one of my students who is obviously in the state of Jharkhand once told me, he is an IAS officer, उसने मुझे बताया कि कैसे जो नए स्टेट्स हैं जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, दे फेस मोर पॉलिसी चेंजेस. मोर पॉलिसी चेंज का अर्थ है कि उनकी पॉलिसीज को स्ट्रीमलाइन होके ग्रास रूट लेवल पे डेवलप होने में दशकों लग जाते हैं. So they can't be compared with states like Maharashtra. The challenges of a state of Maharashtra will be very different from the challenges of a state like Jharkhand. So this is what also you have to understand. You please keep in mind, आप जिस स्टेट से हैं या जिस स्टेट्स का आपका एक्सपोजर है, उसके भी challenges different होंगे. Coming to one of the आइडियाज की इंटरव्यू में कैसे होती हैं चीजें, आप कैसे कर सकते हैं, आप कितने रिलैक्स्ड और कितने आप जो है फॉर्मल भी साथ में रह सकते हैं. द ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल की एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर, जो स्पेक्ट्रम को एक रिसोर्स के तौर पर जब बताया गया, तो उसको कंपेयर किया गया कि आत्मा से. ये एनालॉजी किसने दी? ये एनालॉजी हमारे ऑनरेबल जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव सर, उन्होंने दी. तो जब एक पैनलिस्ट ने उनसे पूछा कि स्पेक्ट्रम सर है क्या, आप जरा डिफाइन तो कर दीजिए, स्पेक्ट्रम तो रिसोर्स है. तो उन्होंने बोला कि स्पेक्ट्रम एयरवेव्स तो है, लेकिन उसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं. पहली बात तो स्पेक्ट्रम का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, वो ओमनी प्रेजेंट है. इट डज नॉट डिटोरिएट अपॉन यूज, आप यूज करते जाइए, खत्म नहीं होता है. एंड इट इज टोटली इनएग्जॉस्टेबल, वो खत्म भी नहीं होने वाला है. फिर उसके बाद जो है आप स्पेक्ट्रम को कैसे मान सकते हैं कि इन चीज़ों को जब आप मानते हैं कि हर जगह है, खत्म भी नहीं होगा और उसका विनाश भी नहीं हो सकता, अजर है, अमर है, तो यानी आत्मा हो गई वो. तो जैसे अब भगवत गीता में बताया गया है आत्मा, तो स्पेक्ट्रम भी एक तरीके से आत्मा की तरह है. तो ऑब्वियसली टेलीकम्युनिकेशन के लिए नहीं, हमारे और आपके लिए भी आत्मा ही, क्योंकि मैं भी जो आपसे बात कर पा रहा हूँ वो स्पेक्ट्रम का कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा योगदान है. और जब 5G आ जाता है, तब आप और अच्छे से और क्लैरिटी से, ये बात डिपेंड करती है कि व्हाट आर इंटेंशन, उसके हिसाब से आप यूज करते हैं. क्योंकि यूज तो बहुत सारे हैं, क्योंकि जरूरतें भी बहुत सारी हैं, तो देखने वाली बात है. जब हम बात करते हैं कि क्या मुझे इंस्पिरेशन है, क्या मैं बड़ा करना चाहता हूँ या बड़ा करना चाहती हूँ, हाउ आई कैन मेक इट बिग, व्हाट इज माय इंस्पिरेशन, हाउ आई कैन रियली मेक इट बिग, सो वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू रोल मॉडल्स. हियर आई एम कोटिंग एन एग्जांपल हाउ Indira Banerjee ma'am, who retired as the Supreme Court judge on recently, Supreme Court Bar Association president, he discussed that how she entered into law because she wanted to become a civil servant, and she wanted to do an MA course. लेकिन उनके कजिन ने उनको कन्विंस किया कि आप लॉ क्यों नहीं पढ़ते हो, लॉ कर लीजिए और आप जो है आप सिविल सर्विस ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे. तो लॉ पढ़ते हुए शी बिकेम फ्रेंड्स विद द फॉर्मर लोकसभा स्पीकर लेट सोमनाथ चैटर्जी सर की बेटी से वो मिली. और सोमनाथ चैटर्जी सर की जो बेटी थी वो शी वाज इन यू नो आई शुड गिविंग हर सर्विसेज टू द Calcutta High Court.
तो जब उनके साथ इंद्रानी बनर्जी मैम गई, तब उन्हें फर्स्ट टाइम एहसास हुआ, क्यूरियोसिटी, मोटिवेशन आया उस एनवायरनमेंट को देख के। एंड दैट्स हाउ शी बिकेम द लॉयर, क्योंकि एक बहुत ही हाई प्रोफाइल किडनैपिंग केस था कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने, और स्टेट ने जो है चैटर्जी मैम की सर्विसेज को लिया था। तो बनर्जी मैम जो उनके साथ गई थी, वो उससे बहुत इंस्पायर हुई। तो आप भी ढूंढिए आप किस चीज से इंस्पायर होते हैं, और वो आपको जरूर सक्सेस तक लेकर जाएगा। हम अगर बात करते हैं कि भाई यूक्रेन में जो हो रहा है, देन ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर्स दे हैव, और ब्रिक कंट्रीज दे हैव ओन रोल टू प्ले। यानी कि जिस तरीके से मल्टीलेटरल बॉडीज के नाम आते हैं, उनके जिस तरीके से एग्जाम्पल्स आते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके टिप्स पे होना चाहिए। ये नहीं कि आप अलग से आप किताब खोल के सारी की सारी बॉडीज को एक साथ रटेंगे, नहीं कर पाएंगे। बट फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रिक्स ओवर हियर, देन यू शुड बी कीप ऑन थिंकिंग एट द बैक ऑफ माइंड, अच्छा ब्रिक्स फुल फॉर्म क्या है, ब्रिक्स का पहला सबमिट किधर हुआ, ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। दिस मस्ट कीप ऑन गोइंग इन अ माइंड। यू कैन स्टॉप द वीडियो इन बिटवीन, जस्ट साइड वाला विंडो ओपन कर दिए, एक बार के लिए ब्रिक्स को देखिए, विकिपीडिया देखिए, या you go to the BRICS website and just have a look and come back and start the video again. Even you should go through the video twice also. There are ways and means how to study and to look at the videos also. We will be discussing separately sometime. In terms of general studies paper 3, both for the prelims and the mains, ethanol, biofuel हर बार का बहुत ही important example है, हर बार का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। इथेनॉल प्रोडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद लॉजिस्टिक्स पॉलिसी एंड अदर आइडियाज। बट द पॉइंट इज, चैलेंज ये है, चैलेंज सिर्फ कॉस्ट के टर्म्स में नहीं है, एमिशन के टर्म्स में भी है। चैलेंज इस टर्म्स में भी है कि आप बायोफ्यूल को जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाएंगे, भाई उसमें भी कितना खर्चा और कितना उसमें से एमिशन होगा। बिकॉज द क्वेश्चन अराइजेस कि जो अल्टरनेटिव फ्यूल है उसको डिस्टिलरीज से आप ब्लेंडिंग डिपोज तक लेके जाओगे, डिस्टिलरीज में आपने डिस्टिल हुआ, ब्लेंडिंग डिपोज में ब्लेंडिंग हुई, उसके बाद वो जो है आपका रिटेल पॉइंट्स पर पहुंचेगा। अभी की अगर हम बात करें, तो ट्रक टैंकर्स उसको लेके जा रहे हैं, मोर देन 1000 करोड़ लीटर्स जो रिक्वायर करेगा ले जाने के लिए, वो उसके लिए आपको 3.5 लाख 3.5 लाख टैंकर्स आर रिक्वायर्ड। एवरेज जो कैपेसिटी है उसकी होगी 29 किलो लीटर्स की। तो अब इतना जो होगा, उसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ेगी, बिकॉज फ्यूल लेके जाया जाएगा तो आप फ्यूल बर्न भी करोगे, ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी होगा। सो दिस इज वन ऑफ द ट्रिकी, आई शुड से क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस वेयर इथेनॉल मूवमेंट इंक्लूडिंग डेडिकेटेड पाइपलाइंस होनी चाहिए, कि रेल टैंक वैगन्स होने चाहिए, कि फेरीज होने चाहिए, कि स्टीमर होना चाहिए। होना क्या चाहिए कोस्टल एरियाज में, या फिर रोल ऑन रोल ऑफ रो रो मॉडल होना चाहिए। तो इथेनॉल ट्रक टैंकर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक एग्जांपल और एक ये क्वेश्चन है कि कैसे करें इसको। So that is why Brazil, which produces the 3,500 crore liters of ethanol annually, has 14 oil refineries and 354 ethanol distilleries, and वो जो है जगह जगह पहुंचा रही हैं। तो मूवमेंट जो इथेनॉल का है, वो पाइपलाइन के थ्रू होगा, कि रेल के थ्रू होगा, कि कोस्टल शिप्स के थ्रू होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इस पे भी आप सोचिएगा, ताकि आप फ्यूचरिस्टिक एंगल से सोच सके, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का क्वेश्चन आता है तब वहां डाल सकते हो, चैलेंजेस की बात है तब वहां डाल सकते हो। और पीटी के अंदर भी अगर बात होती है कि भाई कहाँ से कहाँ तक की हम पाइपलाइन रेडी कर रहे हैं, तो वो भी प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बनता है। फ्रॉम द पीटी पर्सपेक्टिव, के राजा प्रसाद रेड्डी की अगर हम बात करें, तो वो बने हमारे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के प्रेसिडेंट। बट द क्वेश्चन इज दैट इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी है क्या? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी इज द अपेक्स बॉडी ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड पीरियडिकल्स पब्लिश इन द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन में या अदरवाइज ऑल्सो या प्रेस के साथ डायरेक्टली उसका कोई लेना देना नहीं है। यूपीएससी also says that the finest language is made up of simple unimposing words। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूपीएससी also believes in the मेंस आंसर राइटिंग इन इंटरव्यू also, और प्रीलिम्स के क्वेश्चन को भी उठा के देख लीजिए, कि हर क्वेश्चन पीटी का ऐसा देख के लगता है कि ये बस मुझे ही आता है। वो जो बाद में देवदास बनने की जब बात आती है, या बाद में डिमोरलाइजेशन होता है, वो तो बाद में होता है, हम सबको पहले नहीं होता है वो। द फाइनेस्ट लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ सिंपल अनइम्पोजिंग वर्ड। सिंपल भी होने चाहिए और इम्पोजिंग भी नहीं होने चाहिए भाई, ऐसा तो बचपन से कभी हुआ ही नहीं। हिंदुस्तान में तो पिट पिट के लोग बड़े हुए हैं। तो सिंपल भी चाहिए और अनइम्पोजिंग भी चाहिए, देखिए और सोचिए। जनरल स्टडीज पेपर 3 इन इकोनॉमिक्स एंड ऑल्सो फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, ये एक अच्छा एग्जांपल है कि कैसे अडानी ग्रुप इज एन एग्जांपल फ्रॉम माइंस टू पोर्ट्स लॉजिस्टिक्स, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू कोलालमपुर टू African countries, even Haifa,
एंड ऑल्सो गोइंग टिल तंजानिया, कैसे उन्होंने अपने फुटप्रिंट को फैलाया है in the fields of you can say coal mining, in the fields of multi-purpose port, greenfield port में greenfield multi-purpose port, greenfield क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो नया पोर्ट बनवाने में मदद की, multi-purpose यानी एक से ज्यादा पर्पसेज है उसके। सो पोर्ट प्रोजेक्ट भी हैं, फिर उसके बाद जो है जॉइंट स्ट्रेटेजिक जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स इन अफ्रीकन कंट्रीज, स्ट्रेटेजिक जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स व्हाट आई एम यूजिंग। साथ साथ में हम बोल रहे हैं कि भाई चाइनीज उसकी तरह, जैसे चाइनीज फुटप्रिंट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तरह, ऐसे ही अडानी साहब के भी फैल गए हैं। अडानी साइज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी, साइज रिसोर्सेज कैपेसिटी, इंडिया को भी वही चाहिए। तो डोंट यू थिंक इन द लॉन्गर रन इंडिया इज आल्सो गोइंग टू इमर्ज इन द सेम वे, इंडिया इज आल्सो गोइंग टू बी पावरफुल पुश, क्योंकि अडानी ग्रुप इज हैविंग द बिगेस्ट पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स इन इंडिया, इट इज द बिगेस्ट पोर्ट एंड लॉजिस्टिक कंपनी। So Australia, India, Japan, जो Quad है, and along with the US, they will be given much more push by groups like Adani. Infrastructure delivery, infrastructure delivery will be possible by his hard work, by the company's hard work. So infrastructure, assistance in investment, and also it will be driving public and private investment, जिससे ब्रिज खत्म होंगे, ब्रिज बनेंगे, मतलब ब्रिज का मतलब गैप खत्म होंगे। So we are talking about this because this you cannot negate their role completely. Everything will not be done by the government. So there is a link between diplomacy and commercial interests. There is a link between private sector and also commercial interests, apart from diplomacy and also geopolitics. तो geopolitics को यही कहते हैं, बात पड़ी, फोन लगाया, बात हुई, काम हो गया, मतलब in a right way, not in the wrong way. जब हम बात करते हैं जनरल स्टडीज पेपर 3 की इंटरनल सिक्योरिटी की, तो पीएफआई इज ए वंडरफुल एग्जांपल। सो पीएफआई नहीं आएगा एग्जाम में ना, उसका कुछ आएगा, बात आएगी इसके पीछे के जो मोटिव्स हैं, बात आएगी इसके पीछे की जो थिंकिंग है, उसको आप कैसे टैकल करेंगे। जो रेडिकल रेडिकल थिंकिंग है किसी भी रिलीजन में, किसी भी पॉलिटिकल आइडिया में, वो आप कैसे टैकल करेंगे, वो आप कैसे एज ए पब्लिक सर्वेंट उसको प्रमोट करेंगे, कैसे आप पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन रूल ऑफ लॉ कैसे आप उसके थ्रू करेंगे। तो डिग्निटी, respect, self-respect, awareness, how you will do that, because PFI is not a marginal or secretive political group. It is working over the ground, it is having political wing, it is also active in the electoral politics। तो यानी कि मतलब बहुत मुश्किल है चीजों को समझ के डायरेक्ट उस चीज को करना। दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड बी ब्रिंगिंग सच आइडियाज, वी शुड बी थिंकिंग अबाउट सच इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, जहां से कोई भी मार्जिनलाइज फील ना करे, जहां पर रूल ऑफ लॉ को डिफाई करने की बात ना करे। तो यानी कि if PFI is having lot of sympathy, political sympathy with itself, then there must be reason for it. So that is why these addresses must be challenged. These security threats must be challenged. ये direct नहीं है, indirect नहीं है. And that is why social and political fabric of country, जो कि जनरल स्टडीज पेपर 1 में सोसाइटी में हर बार पूछता है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली सेम ही क्वेश्चन होता है वो। So this what you have to think and also try to think of challenge solutions in this regard. पीएम श्री स्कूल्स की बात हुई थी। फॉर फ्रॉम एसए पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम एथिक्स पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें, जो मतलब कि हमारे 4 शब्द अगर मैं बताऊं एनईपी के, फटाफट से आप बोलो 4 शब्द क्या हैं। कल को आप इंटरव्यू में जाने वाले हो, वहाँ सब कुछ रट्टा मार के नहीं जा सकते। मेंस के अंदर भी अगर एजुकेशन पे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर, जनरल स्टडीज पेपर 3 के फर्स्ट टॉपिक्स के ऊपर, या फिर एसए में भी अगर कुछ लिखना, तो क्या 4 वर्ड होंगे। मैं बोलता हूँ इंक्वायरी, क्रिएटिविटी, डिस्कवरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर से रिपीट करता हूँ, इंक्वायरी, क्रिएटिविटी, डिस्कवरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये 4 शब्द आपने यूज कर लिए, जो डिसीजन मेकिंग में और जॉयफुल रनिंग में हेल्प करेंगे। डिसीजन मेकिंग और जॉयफुल रनिंग के बिना एनईपी इज गोइंग टू बी अ फेलियर। सो दीज स्कूल्स, दीज पीएमश्री स्कूल शुड बी अ रोल मॉडल फॉर ऑल द अदर स्कूल्स फॉर इंडिया, जिसके अंदर कमिटमेंट, हार्डवर्क और प्रोग्रेसिव थिंकिंग चाहिए। बिकॉज वी आर मूविंग थ्रू ए डेमोग्राफिक डिविडेंड। बट द प्रॉब्लम इज नॉट दस्ट कि हम क्या लर्न कर रहे हैं, हम कैसे लर्न कर रहे हैं। भैया इतने सारे कोचिंग है, इतने सारे स्कूल हैं, आप पढ़ रहे हो, खूब पढ़ रहे हो, दबा के पढ़ रहे हो। वट यू आर लर्निंग, हिस्ट्री यू आर लर्निंग, पॉलिटी यू आर लर्निंग, एथिक्स यू आर लर्निंग, बट कैसे, क्वेश्चन इज कैसे। आउट ऑफ द क्लासरूम कैसे, इनसाइड द क्लासरूम कैसे, क्या आप वाकई लर्न कर रहे हो कि रट रहे हो। तो सेम थिंग इज विद द पीएमश्री also. So large investment is only one of the regions. Every region will have a good physical infrastructure. There will be an assessment. There will be a kind of a social infrastructure created, जिसको हम कहते हैं कि भाई आपने जो है
बहुत अच्छे से आपने स्कूल का सिस्टम रेडी किया। स्कूल का सिस्टम कैसे रेडी करोगे? आप रेडी करोगे अच्छे काउंसलर से, आप रेडी करोगे अच्छे टीचर्स के थ्रू, आप रेडी करोगे teachers are not only just having assessment, teachers are also having a great role and shaped by regular training, by regular work and so on. तो ये होगा कैसे? क्वेश्चन इज दैट ये होगा कैसे? दैट इज वाई पुअर टीचिंग जो है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सिस्टमेटिक डेफिसिट्स, सिस्टमेटिक डेफिसिट्स इन सिस्टम, यानी वो भी सिस्टम बन चुका है अपने आप में। टीचिंग प्रोफेशनलिज्म must be attractive to the best talents and best minds, which is not the case. That is why answer will come out. तो सोसाइटी और एथिकल पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बता दिया। In terms of general studies paper 1 and geography optional, very important point is that how urbanization will be discussed and urbanization will be promoted and urbanization should take place in India। आजकल हम लगातार इसकी बात कर रहे हैं। The question arises that whether it will be such kind of ad hoc measures या हम भी वर्ल्ड क्लास सिटी बन पाएंगे। इंडिया की सिटीज भी वर्ल्ड क्लास सिटीज बन पाएंगे इन स्पाइट ऑफ हैविंग गेम प्लान्स। हमारी सिटीज का डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड के एग्जांपल्स लें, जैसे गार्डन सिटी मूवमेंट हुई थी, तो गार्डन सिटी मूवमेंट वर्कड ऑन द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द वर्किंग एनवायरनमेंट। सिटी सेंटर जो है हेल्दियर लिविंग के लिए पुश किया गया, फैक्ट्री वर्कर्स आसपास रहेंगे, आइडियल ग्रांड सिटी प्लान की गई, उसमें ओपन स्पेस थे, पब्लिक पार्क्स थे, बॉलीवुड थे, पेड़ लगे हुए हैं, आप घूमेंगे, यानी चांदनी चौक बन गया एक तरीके से वो। यूएस में भी ये हुआ, रेजिडेंशियल हाउसेज, स्कूल्स, कम्युनिटी सेंटर, सब चीजें आसपास हो गई। क्या इंडिया में ऐसा हो सकता है? ट्रैफिक भी कम हो गया उससे, सेफ रूट ज्यादा हो गई, लंदन में भी ग्रीन बेल्ट बन गया, तो इंडिया का क्यों नहीं ऐसा हो सकता? आप बोल रहे हैं, अरे आप बोल रहे हैं इंडिया का कैसे नहीं हो सकता, उसके लिए आपको पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक इंडस्ट्री नेक्सस तो तोड़ो। हमारे यहाँ पहले पेज के ऊपर DLF 5 का ऐड आता है, कभी चेन्नई का आता है, कभी हैदराबाद का आता है, कभी जयपुर का आता है, घर देखे हैं आपने? हम तो एक कम्युनिटी में बनाने की बात ही कर रहे हैं। हम तो उन पेजेस में बता रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ आइए, गेटेड कम्युनिटी होगी, गेटेड के बाद भी अंदर बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक के अंदर भी एक पर्सनल स्विमिंग पूल होगा। तो कैसे होगा ये कैसे हो पाएगा? जो ये सेग्रीगेशन है कैसे हो पाएगा? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन वन ऑफ आवर प्रीवियस लेक्चर्स दैट हाउ नोएडा बना किसी और पर्पस के लिए था, बन के कुछ और रह गया। नोएडा वाज सपोज टू बी द एक्सटेंशन सो दैट वर्किंग क्लास एंड द वर्किंग पॉपुलेशन इन दिल्ली वो जो है वहां पर वर्क मतलब रहेगी, और चीजें जो है इस तरीके से इंटीग्रेटेड होंगी दैट इट विल बी अ काइंड ऑफ अ सिम्बियोटिक रिलेशन। और हुआ क्या लास्ट में? कंक्रीट बिल्डिंग्स हैव बीन देयर, कंक्रीटाइजेशन ऑफ बिल्डिंग्स हैव बीन देयर विदाउट इंटीग्रेशन विद रेस्ट ऑफ द स्टफ। सो मास्टर प्लान तो है, अर्बन लैंड यूज भी है, लेकिन वो ट्विस्ट किया जाता है। इन वन ऑफ आवर अर्लियर केस स्टडीज हमने बात की थी सिकंदराबाद हैदराबाद की, कैसे फायर क्लियरेंस मिल जाती है। लोकल गवर्नमेंट का रोल हमें पता है। लोकल गवर्नमेंट मेनी टाइम्स इज नॉट सो मच माइंडफुल, इलीगल सैंड माइनिंग भी होती है। सो द पॉइंट इज दैट द नेबरहुड्स एंड अर्बन नेबरहुड्स एंड द एक्सटेंडेड विलेजेस, जो हमने मालधारी की भी डिस्कस किया था एक दो दिन पहले, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल दीज आर लिंक्ड। Public land availability must be high. India's urban density, India's urban density is very high. It must also be, taken into account. जैसे नोएडा, गुरुग्राम, तो public services and green emissions, because climate change is there. And urban city जो technological solutions हैं, they must be there. Otherwise, in the longer run, we are not going to have. We will be looking forward to mitigation. So structural engineering has to be economically, socially and politically viable. Super tech buildings आप बार बार नहीं गिरा सकते। So that is why please understand and look for solutions। और उसके अंदर भी सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी, उसके अंदर भी सबके लिए how to access rather than created a kind of a half burnt systems, वो हमें देखने हैं। That is what you can say from this discussion. From the prelims perspective, T.V. Satyanarayanan, Carnatic music doyen, intellectual in Carnatic music, who went on to bring new ideas in Carnatic music. He was guru, and he was a great inspiration to T.M. Krishna ji. T.M. Krishna की किताब का नाम है Southern Music, The Carnatic Story. He is also a very very famous musician. So from the prelims perspective, I am giving you this fact. Again,
इन आर्ट एंड कल्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पटचित्रा, देखिए सामने हमारे पटचित्रा बना हुआ है, पटचित्रा और पटचित्रा ट्रेडिशनल क्लोथ बेस्ड स्क्रॉल पेंटिंग। स्क्रॉल जैसे कैलेंडर आप स्क्रॉल करते हो, खुल जाता है, बंद हो जाता है, दैट इज कॉल्ड स्क्रॉल पेंटिंग। ये जो है दुर्गा पूजा के स्टॉल के यहाँ दिखाया गया है। दुर्गा पूजा phenomenally great festival, social reality, and also very much embedded in our minds, heart, and soul. That is what is the role of Durga Puja, and I'll discuss and show you that what kind of different social fabric lives are shown in Durga Puja. From the General Studies paper 2, इंडियन इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव एंड आल्सो फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर, अगर मैं आपसे बोलूं इंडिया क्यों चाहता है कि वॉर खत्म हो जाए, हाँ सब कोई जनरल आइडिया तो लिख ही सकते हैं, बट द क्वेश्चन इज दैट इंडिया is dependent on Russia for more than 70% of its military needs right now. It is not happening today. It is happening from the last 40 years, more than 40 years. September 21, 1982. यहाँ पे exact date भी है that how India and Soviet Union agreed that the primary task in front of them was to avoid any kind of war in the age of Cold War. लियोनाइड ब्रिजनेव एंड इंदिरा गांधी मैम ने डिस्कस किया, और अभी मोदी सर ने, और साथ में आपके ऑनरेबल पुतिन जी ने डिस्कस किया. सो दिस इज व्हाट वन एंगल वी कैन टेक. Now the question arises that the state, what is the state? What is the state of Russia right now? So Russia being a civilizational state, being a fatherland, being a state which you cannot back out, it must be, dealing with the crisis of NATO expansion and the Western hegemony hands on. That is why, that is why for India, the concern is that how India is going to maintain its defense requirements in the longer run and in the immediate run. Because फॉर इंडिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द ईस्टर्न लद्दाख, और ऊपर से जैसे दिपसैंग प्लेन्स और चार्डिंग ला नाला जो है आपका देमचौक में, प्लीज डू हैव अ लुक एट दीज एग्जैक्ट पोजीशंस. ये हमारे लिए बहुत ही ब्रेसिंग पॉइंट है. इंडिया की मोर देन 60,000 ट्रूप्स अभी भी दिन रात इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर वहां मोबिलाइज हैं लद्दाख में. डिफेंस सप्लाईज हमें चाहिए, वरना in the immediate run and in the some time we will be start pinching. That is why India wants one of the ways that war वैसे भी खत्म होना चाहिए और वैसे भी खत्म होना चाहिए. फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कार्बन डेटिंग आपको पता होना चाहिए. कार्बन डेटिंग एक बहुत ही एज ओल्ड मेथडोलॉजी है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स की एज डिस्कस करते हैं. लिविंग थिंग्स के अंदर सबके अंदर कार्बन होता है. कार्बन 14 आइसोटोप ऑफ कार्बन है. C14 का मतलब C14 इज एन आइसोटोप ऑफ कार्बन. एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली एटॉमिक मास 14 होता है, रेडियो एक्टिव होगा और एक वेल नोन रेट पे डीके करता है. तो जिस रेट पे वो डीके कर रहा है उससे आपको पता चल जाता है कि भाई हाँ इतने साल पुराना रहा होगा. हम जानते हैं प्लांट्स गेट कार्बन थ्रू फोटोसिंथेसिस, एनिमल गेट इट थ्रू फूड, लेकिन एनिमल और प्लांट दोनों ही डिकम्पोज हो जाते हैं और एटमॉस्फेयर में रिलीज भी करते रहते हैं. जब जैसे ही वो मरते हैं देन इंटरेक्शन विद द एटमॉस्फेयर स्टॉप्स, बट C12 वो तो स्टेबल है, लेकिन जो C14 है वो वन हाफ रिड्यूस हो जाती है इन अबाउट 5730 ईयर्स. सो दिस एग्जैक्टली यू मस्ट नो, 5730 यू मस्ट नो, अदरवाइज यू मे मार्क द रॉन्ग ऑप्शन इन प्रीलिम्स. क्वेश्चन आ चुके हैं, क्वेश्चन आएंगे. ऑल्सो इन एंथ्रोपोलॉजी एंड ऑल्सो इन हिस्ट्री ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी आते हैं इन पेपर 1 अपार्ट फ्रॉम जनरल स्टडीज आई एम टॉकिंग. सो इसीलिए एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है कार्बन डेटिंग, बट लेकिन वो बहुत बहुत मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज नहीं हो सकती है. फॉर एग्जांपल एज ऑफ थिंग्स दैट आर मोर देन 40,000 और 50,000 ईयर ओल्ड, बिकॉज कार्बन डेटिंग से हुई. दिस इज बिकॉज 8 से 10 साइकिल ऑफ हाफ लाइफ के बाद अमाउंट ऑफ C14 बहुत थोड़ा रह जाता है, डायरेक्ट ही नहीं कर पाते. लेकिन फिर आप कैसे करेंगे? तो कार्बन डेटिंग के अलावा और भी मेथोडोलॉजीज हैं, जैसे रेडियो मैट्रिक डेटिंग मेथड्स. उसमें आप हाफ लाइफ बिलियन ऑफ ईयर्स तक की पता लगा सकते हैं. तो इसलिए मेथड जो है जो बहुत ही पुराने रॉक्स उन सब के लिए, उसके लिए पोटेशियम आर्गन डेटिंग, और दूसरा क्या है यूरेनियम थोरियम लीड डेटिंग. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पुराने हैं. पोटेशियम आर्गन डेटिंग, यूरेनियम थोरियम लीड डेटिंग. सो रेडियोएक्टिव आइसोटोप जो पोटेशियम का है वो डीके करता है आर्गन में, और उसका रेशियो से हमें क्लू मिल जाता है कि एज क्या है रॉक की एज क्या है. यूरेनियम थोरियम भी सेवरल रेडियोएक्टिव आइसोटोप होते हैं, वो भी डीके एक स्टेबल, यानी स्टेबिलिटी आपने देखा सब जगह है, कार्बन 14 में भी है, इधर भी है. बिना स्टेबिलिटी के आप पता नहीं लगा सकते, तो रेशियो से पता लगता है. सिमिलरली कितने टाइम तक ऑब्जेक्ट सनलाइट को जो है एक्सपोज रहा है, अलग अलग टेक्निक रहेंगी.
समझने के लिए। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है भरी हो जमीन के नीचे, ऑब्जेक्ट हो सकता है कि बिल्कुल ही बाहर रहा हो, तो उसकी टाइपोलॉजी में चेंज आ जाता है। इसीलिए CRN, कॉस्मोजेनिक न्यूक्लियाइड डेटिंग, CRN, वो अप्लाई किया जाता है आइस कोर्स में, पोलर रीजन के अंदर। कुछ सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि कार्बन डेटिंग जो है इनडायरेक्टली भी यूज कर दी जाती है। जैसे आइस कोर्स आप ग्लेशियर में देख रहे हैं, पोलर रीजन में देख रहे हैं, फिर आप देखेंगे कि उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ट्रैप हो गए हैं आइस शीट्स के अंदर, वो तो पता लग सकते हैं, बिकॉज उनका इंटरेक्शन आउटसाइड का हुआ ही नहीं है। क्योंकि जैसे वो कार्बन जो मॉलिक्यूलर ड्रॉप्स थे वो वैसे के वैसे ही हैं, लाइक द वे देवर व्हेन इट हैपेंड, जब वो ट्रैप हुए थे। तो इससे रफ एस्टिमेट लग जाता है आइस शीट्स बनी कब थी। सो हाउ लॉन्ग द रॉक हैज बीन एट ए पर्टिकुलर प्लेस कैन ऑल्सो डिटरमाइन कि भाई उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, लाइक डेड प्लांट है, प्लास्टिक है, इंसेक्ट, अगर वो ट्रैप हो जाए तो पता लग जाता है कि भाई वो चीज कब से वहां पर है। तो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ज्ञानवापी मॉस्क, कि भाई वहां पर जो बोला गया है कि शिवलिंग है, जो शिवलिंग ज्ञानवापी मॉस्क में है, वो कब का है। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि स्ट्रक्चर को आपको अप्रूट नहीं करना है, उसको डिसरप्ट नहीं करना है, तो ऑर्गेनिक मटेरियल उसके अंदर क्या है शायद कई बार पता भी ना लग पाए, ऐसा भी पॉसिबल है। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आर्टिकल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जनरल स्टडीज पेपर 1, कार्बन डेटिंग, उसके बाद from history optional and also from the anthropology optional also, apart from agriculture sciences. अब हम जनरल स्टडीज पेपर 3 की बात करें, जिसमें मैं आपसे सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ कि भाई लिक्विडिटी जब डेफिसिट मोड में जाएगी तो क्या होगा। ये कॉन्सेप्ट है। बैंकिंग लिक्विडिटी इफ इट इज गोइंग इन द डेफिसिट मोड तो होगा क्या, सरप्लस में भी हो सकती है लिक्विडिटी और डेफिसिट में भी जा सकती है। तो डेफिसिट में जब वो जाएगी तो होगा क्या, लेकिन उससे पहले जानना बहुत जरूरी है कि सिस्टम के हिसाब से बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी होती क्या है। बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी, जैसे आपके घर में पैसा कितना है वो आपकी होम सिस्टम लिक्विडिटी कहलाएगी, ऐसी बैंक में जितना पैसा होगा उस टाइम पे रेडी अवेलेबल कैश जो होगा वो कहलाएगा आपका लिक्विडिटी, बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी। शॉर्ट टर्म बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स, आपका खाना पीना, बाहर का गैस का सिलेंडर, ये वो। गैस का सिलेंडर हो सकता है आपके घर PNG लगा हो तो आप उसको ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। सो बैंकिंग सिस्टम में अगर आप नेट बोरोवर हैं RBI से अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, देन इट इज कॉल्ड टू बी डेफिसिट। अगर आप नेट बोरोवर हैं RBI से तो देन इट इज कॉल्ड यू नो व्हाट आई सेड, डेफिसिट। लेकिन अगर आप बैंकिंग सिस्टम में नेट लेंडर हैं RBI को तो दैट इज कॉल्ड सरप्लस। अगर आप RBI को लेंड कर रहे हैं, सिस्टम इज सेड टू बी इन सरप्लस। तो LAF क्या हुआ, फिर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या हुई, RBI ऑपरेशंस, RBI के वो कार्य, RBI की वो यू नो बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज की तरह, कि भाई जिसके थ्रू से वो लिक्विडिटी इंजेक्ट करेगा और लिक्विडिटी एब्सॉर्ब करेगा। तो अब डेफिसिट क्यों हुआ, डेफिसिट हुआ पहली बात तो बैंक क्रेडिट बढ़ गया, दूसरा एडवांस टैक्स पेमेंट कॉर्पोरेट्स के द्वारा, और तीसरा इंक्रीमेंटल डिपॉजिट भी जितना होना चाहिए उतना क्रेडिट डिमांड के साथ पेश नहीं हो पाया। अगर इंप्रूवमेंट होगी क्रेडिट के लिए, या फिर जो रीसेंट टैक्स फ्लो से जिससे पता लगता है, तो उससे पता लग रहा है कि ये सिचुएशन कुछ और टाइम तक चलती जाएगी, और ऊपर से RBI का बार बार रुपये के चक्कर में इंटरवेंशन करना। सो डेफिसिट जो, जैसा मैंने कहा फिर से मैं रिपीट करता हूँ, डेफिसिट यानी कि जब जो है बैंकिंग सिस्टम नेट बोरोअर बन जाएगा RBI से, तो हो जाएगा वो डेफिसिट में चला जाएगा। तो डेफिसिट इन द लिक्विडिटी सिचुएशन हैज बीन कॉज्ड बाय द, वही जैसा मैंने कहा कि भाई क्रेडिट, uptick in the bank credit, advanced tax payments by corporates, intervention by RBI for forex market, और incremental deposit का पेस ना रख पाना क्रेडिट डिमांड के साथ साथ। अब इससे होगा क्या, लेकिन लास्ट में आपके घर में क्या होगा, तो टाइट लिक्विडिटी कंडीशन जो होगी वो अगर बढ़ती है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और जो यील्ड्स हैं उससे जो है उनका और राइज हो जाएगा, और राइज का मतलब है इंटरेस्ट रेट राइज हो जाएगा कंज्यूमर्स के लिए। तो एक 10 साल का बॉन्ड जो 7.23% मान लो दे रहा है, तो हो सकता है कि आगे चल के वो थोड़ा सा बढ़ जाए। यू नो दैट इज हाउ इट इज वी कैन से। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सभी का ये कहना है कि शॉर्ट टर्म रेट्स जो है वो बढ़ जाएंगे फास्टर पेस पे, इसका मतलब टाइटर लिक्विडिटी को शो करेगा। तो यानी अगर 50 बेसिस पॉइंट्स, मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था, बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक अगर करेगा तो उससे जो है और फर्क पड़ेगा। तो राइज इन रेपो रेट यानी हायर कॉस्ट ऑफ फंड्स, राइज इन रेपो रेट मींस हायर कॉस्ट ऑफ फंड्स, दैट मींस टाइटर लिक्विडिटी। क्योंकि बैंक भी अपना रेपो लिंक लेंडिंग रेट्स को इंक्रीज करेंगे, और उसके साथ एक और वर्ड आ जाता है, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन भी आ चुका है, MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स लेंडिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लेंडिंग रेट वो भी बढ़ जाएगा।
तो आरबीआई क्या करेगा इस सिचुएशन में? इफ द करंट लिक्विडिटी डेफिसिट सिचुएशन इज टेम्पररी एडवांस टैक्स फ्लो के कारण, तो आरबीआई कुछ भी नहीं करेगा हो सकता है। लेकिन अगर लॉन्गर टर्म के लिए रहेगा तो आरबीआई हैव टू टेक मेजर्स टू इंप्रूव द लिक्विडिटी सिचुएशन। तो यानी लिक्विडिटी अगर वो बढ़ाएगा तो जैसे हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में फिर हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, फिर हम बात कर रहे हैं भाई रुपये को मैनेज कैसे किया। तो इट्स अ साइकिल, यू हैव टू अंडरस्टैंड। Coming in terms of inspiring personalities and also, I should say, role models for ethics and also for sports. So Dilip Tirke sir, I have met him personally also. He has been an amazing personality. He is, when I met him, he was Rajya Sabha member at that time. So Dilip Tirke sir has been appointed as the Hockey India president. पर ये important बात नहीं है. Most important बात ये है that his humbleness, his grassroots level, rise, and also his focus for the, for the benefit of hockey. It is believed that he has been a very, very great personality and instrumental in promoting sports, not just for Orissa, but also for whole India. So it is a wonderful development, and he is going to help in channelizing and systematic development of, you know, of grassroots hockey players, bringing them in the limelight, bringing them to the proper coaching and also proper pathway to develop their career. So it's great congratulations to him and also to whole India. सिमिलरली अगर हम बात करें कि जो डेवलपमेंट हमारे सामने सोसाइटी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिक्स के होते हैं, उसमें से प्रीलिम्स के क्वेश्चन को हम कैसे लिखाएं, तो आप एक और स्ट्रेटजी भी स्टार्ट कर सकते हैं कि यू शुड जस्ट कीप ऑन having a focus upon keywords, whether they are by visual appealing, whether they are by writing words, स्पेशली इन द इमर्जिंग एरियाज, स्पेशली इन एरियाज जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत चैलेंजिंग है, जो कीवर्ड बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, जो कीवर्ड बार बार न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, उनको आप जरूर ध्यान रखिए. यू कैन ऑलवेज राइट इन द comment section that this is what I have felt, and you can ask the questions also. In terms of India-China relations and also in terms of border management, General Studies Paper 3 Security, always there are questions. So I am just discussing here in very brief कि actually आखिर में होता क्या है. बॉर्डर स्टेट के ऊपर यदि पावर ही नहीं होगी और वहाँ जेनसेट से काम चलेगा, वहाँ पे पेट्रोल डीजल से आप काम चलाएंगे, तो फिर लॉन्ग टर्म में आप सस्टेनेबल नहीं रह सकते. That is why line of actual control के आसपास India is working for infrastructure development. More than 650 crore plan is already being sanctioned over there in Ladakh. So I am already showing you the map, जिसमें आप एग्जिस्टिंग लाइन देख सकते हैं कि इंडस ब्रिज के यहाँ से न्योमा सबस्टेशन से लेके प्रपोज करके पूरा वो खानू सबस्टेशन तक जा रहा है, लेह तक जा रहा है. ये एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है. तो प्रपोज देखिए आप, प्रपोज्ड फ्रॉम हेयर टिल चांगला, श्योक, थांगस्ते, फोब्रांग, चुशुल, Sangha, Indus Bridge. That is how it is being planned to, it is being planned so that to improve the quality of life and to assure development in Ladakh. The project blueprint is not only for the civilian life development, but also this blueprint is for defense forces stationed over there. And also, especially Government of India and the Prime Minister Sir, he wants that हम green energy को promote करें. So once grid power is reaching there, उसके उसकी वजह से आपके ग्रीन एनर्जी यूज होगी, एंड देन यू विल हैव लेस कार्बन एमिशन, and the distribution of infrastructure in the villages, it will be changing their, altering their life forever, and also it will be giving more command, more clarity, more confidence to border situation also as far as India is concerned. So logistical challenges भी काम बनेंगे, और उसके बाद जो है हमारे लिए डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा मैंने कहा, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट role होगा. So this is what we can see and understand from General Studies Paper 3, uh, internal security, and even also from the perspective of international relations for both political science and also for, you can say, General Studies Paper 3. Let's coming back to another case study which is very, very important. This time we have got a question in General Studies Paper 3 on cloud burst. तो धीरे धीरे जो है चीजें बदल रही हैं, तो why not we may be getting a question on tracks. जो ट्रैक्स हैं, यानी कि जो आपके ट्रैकिंग के पाथ्स हैं, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ
उत्तराखंड आई एम टॉकिंग, अगर आप में से कोई ट्रैक पे गया है और आप में से कोई ट्रैक पे जाना चाहता है, तो ऐसे अगर आप वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के अगर आप आईपीएस ऑफिसर भी हैं, अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विस में भी हैं, अगर आपसे पूछा जाता है भाई 3 चीजें बताओ फटाफट से सोशल मीडिया पे लिखनी है, प्राइम मिनिस्टर साहब पूछ रहे हैं या चीफ मिनिस्टर साहब पूछ रहे हैं, क्या लिखोगे 3 चीज? तो 3 वर्ड अगर आपको जो लिखने पड़ेंगे, लिखना पड़ेगा आई वांट प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा सोशल मीडिया पे शो ऑफ नहीं होना चाहिए, तीसरा प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए। यानी ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग और सोशल मीडिया पे हवाबाजी नहीं। ये 3 चीजें अगर आप बोलोगे, तो आप 3 चीजों के कारण आप जो है ट्रैकिंग को मजबूत बना पाओगे, क्योंकि ग्रेट फ्रेश आउटडोर होता है, सब लोगों को बड़ा, नेचर अट्रैक्ट्स एवरीबडी, बट देन इट कैन बी फैटल ऑल्सो। सो ट्रैकिंग की जो अपनी प्लानिंग है वो तो है ही है, ओवर एडवेंचरस होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहना है फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। बी वेरी वेरी मॉडरेट, आई मीन टू से हम्बल with your guide, with your coach and fellow mates. So acclimatization हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक्स की acclimatization भी आपको आनी चाहिए। ये कोई ईगो एक्सपोर्टेशन नहीं है कि आपने बहुत बड़ा कर दिया और ऊपर पूछ के ये किया आपने उससे कुछ हो जाएगा, नहीं। सो द यूथ एंड द यंगस्टर्स टुडे इन द टाइम्स ऑफ सोशल मीडिया सेंसेशन एंड इंस्टाग्राम रील्स, वो यही सोचते हैं विदाउट प्रिपरेशन एंड अवेयरनेस, लेकिन उससे खतरा बढ़ेगा, नुकसान होगा। तो एडवांस प्लानिंग, अडेप्टेबिलिटी टू सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशनल लीडरशिप। देखिए कीवर्ड क्या है, सिचुएशनल लीडरशिप। टीम मेंबरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट द माउंटेन बिग और स्मॉल। ये तो आप किसी एस्से की शुरुआत में भी लिख सकते हैं, ये तो आप एथिक्स की केस स्टडी में भी फटाफट ऐसे करके लिख सकते हैं। तो आपको यानी पूरा पैराग्राफ समराइज याद करने की जगह आपको बड़े बड़े शब्द याद रखने पड़ेंगे, ताकि आप जरूरत पड़ने पर उसको ऑसम परफॉर्म कर सको। और ये लगातार प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, गाइडेंस और एक सिस्टमेटिक अप्रोच से होता है, अपने आप नहीं होने वाला। फॉर एग्जाम्पल, आप देखेंगे कि वेदर कंडीशंस क्या है, आप देखेंगे कि जो है व्हाट आई शुड से फिजिकल फिटनेस क्या है, आप देखेंगे कि भाई गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या है। क्योंकि ट्रैकिंग एंड माउंटेनियरिंग दे हैव बिकम स्टाइल स्टेटमेंट्स। वो लोगों की नेचर के लव की वजह से नहीं हो रहे हैं, वो इसलिए नहीं हो रहे हैं कि आप सॉलिट्यूड ढूंढने जा रहे हो, कि आप सेल्फ रियलाइजेशन के लिए जा रहे हो। भाई स्टाइल स्टेटमेंट बन गया है, भैया हम वहाँ गए थे, भले आप रहो वैसे ही वहाँ, आप पान थूक के आ जाओ या आप वहाँ सिगरेट पी के आ जाओ, बोथ मेल एंड फीमेल आई एम टॉकिंग, बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। अनप्रोफेशनलिज्म नहीं चाहिए। ओके, तो सोशल मीडिया वाला आइडिया मैंने आपको बताया, और ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन जो हो जाता है, देन इट बिकम्स ए वेरी वेरी हैक्टिक थिंग, दैट इज हाउ एडमिनिस्ट्रेशन कम्स इनटू पिक्चर। सो आई एम हियर शोइंग यू द मैप। ये देखिए, डूज एंड डोंट्स मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन आप देखिए, अगर आप उत्तराखंड पीसीएस भी देने जा रहे हैं, तो उसके अंदर आपको ऑर्डिनेंस कर्नल हाई माउंटेन पास ट्रैक है, ऑर्डिन कर्नल्स हाई माउंटेन पास, कालिंदी खाल है, पनपाटिया कर्नल ट्रैक है, पांगरचूला ट्रैक है, हर की दून ट्रैक है और केदारनाथ ट्रैक है। ये सामने मैप में आपको दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड नंदा देवी पार्क। और ये आपको हिमाचल से यहाँ के हर्षिल से लेकर चितकुल तक जा रहा है। इधर से आप देखिए केदारनाथ, सांकरी, गोविंद नेशनल पार्क के यहाँ से जा रहा है। तो आपको मैंने बताया कि कैसे होता है, बिकॉज ट्रैकिंग एक्सीडेंट्स कीप ऑन टेकिंग प्लेस एवरी now and then. That is why it is very very important, and also do not forget to choose a safe composite. तो ये सारी बातें आपके एथिक्स के स्टडी में 150 वर्ड से 250 वर्ड में, यही सिर्फ नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन पूछ रहा होगा वो भी लिखना होगा और ये भी लेके आना होगा। अब बताइए इसके कैसे नोट्स बना के आप करेंगे, कोई उत्तर हो तो मुझे जरूर बताइएगा। सिमिलरली, अगर हम बात करें तारीख, इंडियन कोर्ट की अगर हम बात करें, चैलेंजेस की बात करें, तो हम कहना चाहिए एवरीथिंग हैज बीन सेड ऑलरेडी, बट नो, एज नो वन लिसंस वी ऑलवेज ऑलवेज बिगिन अगेन। तो जस्टिस मैलिमथ कमेटी ने 2003 में कहा था, ये इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, ये फ्रेंच नोबल लॉरेट एंड्री गाइड का कोट है, आप नोट कर लीजिए, एवरीथिंग हैज बीन सेड ऑलरेडी बट एज नो वन लिसंस वी मस्ट ऑलवेज बिगिन अगेन। अगर मैं भी रोज यही करने लगूं तो हम वहीं खड़े रहेंगे, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट, नन ऑफ आवर आर्टिकल्स विल बी रिपीटेड, none of our ideas will be repeated, and we will continue to march ahead to success for the civil services however long it takes। पीएससी हो, सिविल सर्विसेज हो, वी विल बी डूइंग इट। तो जुडिशियल सिस्टम की दो मेन प्रॉब्लम्स हैं, हाई पेंडेंसी और लो कन्विक्शन रेट। तो आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में, कैन यू टेल जुडिशरी व्हाट इज सफरिंग फ्रॉम, और आपने फट से बोला सर इट इज सफरिंग फ्रॉम हाई पेंडेंसी केसेस एंड लो कन्विक्शन रेट। सर नंबर आएंगे, बात होगी, रट के भी नहीं बोलना है, चिल्ला के भी नहीं बोलना है, आपको समझाना है। तो अगर वो तारीख सनी देओल बाबा ने जो कहा था वो अगर सच है, तो उसको हटाया कैसे जाए। तो 49 लाख केसेस आर देयर विच आर मोर देन 3 years ओल्ड। अब होता क्या है ये होने से, होता ये है कि पेंडेंसी की वजह से पनिशमेंट हिट हो जाती है। तो मलिमत कमेटी ने बोला कि एक्विटी इंक्रीज बढ़ जाते हैं लॉन्ग पेंडेंसी के कारण, क्योंकि एविडेंस क्लोज हो जाता है, विटनेस भी थक जाते हैं, होस्टाइल भी हो जाते हैं, फिर आप क्या करोगे। कन्विक्शन रेट फॉर आईपीसी क्राइम जो है वो ड्रॉप हो चुका है 59
परसेंट पर 100 कंप्लीटेड ट्रायल्स से 57%, यानी और कम हो गया। तो कन्विक्शन रेट वायलेंट क्राइम्स में कम है ओवरऑल कन्विक्शन रेट की वजह से। क्योंकि बिगेस्ट फॉल किस केसेस में हुआ, जहां पे कल्पिबल होमिसाइड था नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एंड रेप। तो चीजें बदल जाती हैं। तो आप देखिए, आप जरा देखिए कि हर्ट है, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस है, असॉल्ट ऑन वुमेन टू आउटरेज मॉडेस्टी है, या अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर है। तो ये चीजें हमारी रियल लाइफ का पार्ट हैं। इफ यू वांट टू बिकम एन इंडियन पुलिस सर्विस, आप कैसे रोल प्ले कर सकते हैं? आप क्यों जाना चाहते हैं सिविल सर्विस में? क्या ये चीजें आपको मोटिवेट करती हैं कि यार ये बहुत बड़ा पंगा है, मैं जाके कुछ तो थोड़ा बहुत करना चाहूंगा? तो देन यू आर द राइट पर्सन टू थिंक सो। Again, one more case study I am taking here, that how Varanasi as an example of PM 2.5 कम कैसे हुआ? Because some time back it is believed that the situation was not so. So right now it has been a combined efforts of the Varanasi Municipal Corporation, study by CPCB, National Air Clean Air Program NCAP, उन्होंने वाराणसी को biggest decline हुआ PM10 levels के अंदर in last 3-4 years. तो कैसे हुआ? How it happened? So that is why the change has been there, because of constant monitoring PM10 or PM2.5 oxides of sulfur and nitrogen. The UP Pollution Control Board has played very important role, apart from citizens जिन्होंने पूरा role play किया. Then आपका the role played by volunteers from BHU, and also Urban Development Ministry, apart from that local traders, सब ने मिलकर किया, उसकी वजह से बहुत सारा चेंज आया. एंड हाउ वी कैन से सो, फॉर एग्जांपल क्या हुआ, बोटमैन एसोसिएशन जो है, उन्होंने कहा कि सीएनजी, अब बोट्स में सीएनजी लग गई, तो सीएनजी रिफिल स्टेशन होने चाहिए, सीएनजी आपका इंजन रिपेयर करने का वो होना चाहिए, देन सस्टेनेबल टूरिज्म विल आल्सो टेक प्लेस, एंड दैट विल बी विन फॉर अस इन द लैंड ऑफ बाबा काशी विश्वनाथ. This case study can be used in ethics also, in geography also, and also in anthropology indirectly, and in sociology also. Similarly, for the prelims perspective, I am just talking about that कैसे millets, रागी और जो बाकी आपके क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं, तो उसकी वजह से एबायोटिक स्ट्रेस हो रहा है. एबायोटिक स्ट्रेस पीटी में पूछ लेगा, उससे होता क्या क्या है? तो हाई टेम्परेचर, एबायोटिक से हाई टेम्परेचर होता है, उससे आपका रैपिड एवोपरेशन होता है, उससे सॉइल ड्राई हो जाती है, सॉइल ड्राई होने से वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, वाटर की अवेलेबिलिटी कम होने से न्यूट्रिएंट अपटेक कम हो जाता है, तो इसका मतलब आपके प्लांट गए तेल लेने. सो इसीलिए स्ट्रेटेजिक एंड सस्टेनेबल साइंटिफिक सॉल्यूशन चाहिए. क्या? मिलेट्स में मैंने जैसे बताया, जवार, पर्ल मिलेट, बाजरा, फिंगर मिलेट, रागी, बार्नयार्ड, फॉक्सटेल, इसको हमने सुपर गेन कहा. क्यों कहा? क्योंकि ये है न्यूट्रास्यूटिकल क्रॉप्स, जिसके अंदर कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, पोटेशियम है, प्रोटीन है, एसेंशियल एमिनो एसिड्स है. ये सब भी आपको पता होना चाहिए. अगली बार यही पूछ लेंगे भाई इन क्रॉप में है क्या क्या. उनका जीआई यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो ही है, जिससे आपको डायबिटीज, शुगर, इन सब चीजों में निजात मिलती है. तो ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद से ये चेंजेस आज की डेट में रिक्वायर्ड हैं. कैश क्रॉप्स अगर हम बात करें तो कॉटन, सोयाबीन, मेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स हैं, लेस वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स हैं. एक तिहाई पानी तो जो है राइस को उगाने में चला जाता है, लेकिन अब राइस पे क्वेश्चन आने बंद हो गए, बहुत हो गया. राइस पूछ लिया, कार्बन डाइऑक्साइड पूछ लिया, सब हो लिया, अब नहीं आएगा, पिट गया एक तरीके से वो. सो जो C4 क्रॉप जो मैंने अभी बात की, उनकी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी भी ज्यादा है, लेकिन उनका जो पोटेंशियल यील्ड है वो हमें नहीं दिखाई देती. ठीक है ना, वो हमें दिखाई नहीं देती. तो क्वालिटीज ऑफ मिलेट्स जो है वो क्लाइमेट रिजिलियंट है. रिच कल्चरल हिस्ट्री भी है इंडिया की. गुजरात हो गया, डेक्कन हो गया, राजस्थान हो गया, आप मैप खोलिए और देखिए कि कौन सी सॉइल है ड्राई रीजन्स के अंदर. अभी भी 50% ज्यादा रूरल एंड ट्राइबल पॉपुलेशन है, एंड इंडिया 60% लाइफ स्टॉक इसी पे डिपेंडेंट है. तो बट अगेन हम फिर से घूम के आते हैं उसी बात पे, ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, लाइफस्टाइल चेंज हो गए हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो अवेलेबल है, बट देन पैकेज फूड भी साइड साइड में बढ़ रहे हैं. तो आपको ये सारी चीजें देखनी है, और आपको देखना है कि इसमें से मैं फैक्ट क्या निकालूंगा. हाई यील्डिंग हम यूज कर रहे हैं, बाय स्ट्रेस, मतलब बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस क्रॉप्स हमें चाहिए, डिजायरेबल कुकिंग क्वालिटीज चाहिए. इन सब चीजों को देखते हुए इंडिया ने 2018 में अनाउंस किया कि नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स होगा, और यूएन ने भी 2023 में क्या किया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया है, जबकि इसकी बात हम 2 साल से कर रहे थे. और क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स हैव बीन देयर आल्सो. सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, उसका भी रोल है. सोरगम, पर्ल मिलेट, स्मॉल मिलेट वेराइटीज हैं, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें जो है एग्रीकल्चर के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उसका भी रोल आ जाता है. प्लीज डू लुक एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो. कमिंग टू द पॉइंट जो हमने पहले भी बात की थी कि भाई
हम जैसे बोलें कि जो आपका रुपी की वजह से जो हो रहा है, जो ओवरसीज हमारा रिस्क, हम जो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3, जो अनसर्टेन ट्रेजेक्टरी जो डेवलप कंट्रीज के बैंक ले रहे हैं, तो हमारे क्या क्या करेंगे, और ऊपर साथ में जियो पॉलिटिक्स। फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट हैज राइजन बाई 105% सिंस रशियन इन्वेजन। अगर वो राइज होगा तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पे फर्क आएगा, उनकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पे फर्क आएगा तो उससे हमारे पर भी इनडायरेक्टली फर्क आएगा। तो इंडिया विल हैव टू फैक्टर इन द एबनॉर्मल ग्लोबल सिनेरियो। रोज रोज नहीं बताएंगे हम, जियो पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं। तो बस हमारे पास लेकिन क्या है, हमारा टैक्स रेवेन्यू रेज कर गया, और साथ साथ में हमारे पास जो है फिजिकल जो पावर है वो हमारी, इट इज इन सच ए वे दैट इट इज हेल्पिंग अस इन द लॉन्गर रन। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट एलिमेंट where we have to understand that what is coming in the prelims also, you have to understand कि रिवीजन हर बच्चा अपने अलग अलग टाइप से करता है। रिवीजन करने का भी एक तरीका होता है विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स। यहाँ अगर हम बात करें जनरल स्टडीज पेपर 4 में, अगर आपको एक केस स्टडी का एग्जांपल देना है कि पंचायत ने जल जीवन मिशन का पैसा तो ले लिया लेकिन रिसीट नहीं दी, तो आप क्या करेंगे? वाटर टैक्स के लिए आपने पैसा तो ले लिया, लेकिन आप जल जीवन मिशन के अंदर आपने, पंचायत ने पैसा ले लिया लेकिन कोई रिसीट नहीं दी, आप क्या करेंगे? सोचिएगा और लिखिएगा। Similarly, we are talking about that how global south, again from PSIR perspective, बहुत ही important आर्टिकल है, अंडरस्टैंडिंग है जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से ग्लोबल साउथ क्या कहलाता है। इवन जीएस पेपर 3 में भी आ जाएगा, एसए में भी आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो, और एथिक्स में भी बस चले तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस के एंगल से आप ले आइएगा। ग्लोबल साउथ, खोलो एटलस और देखो ग्लोबल साउथ, साउदर्न हेमिस्फीयर में आता क्या क्या है। यूएस के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो हैं वो क्या शो कर रहे हैं ग्लोबल साउथ की तरफ, इट मस्ट फोर्स। यूरोप भी पीछे नहीं है, यूरोप भी सैटेलाइट अलायंसेज इन कंट्री के साथ बना रहा है, चाइना को रोकना है। चाइना इज नॉट नियर यूएस, बट देन चाइना इज राइजिंग, इकोनॉमिक रीच इज इंक्रीजिंग। चाइना ने काउंटर इंस्टीट्यूशंस बनाने शुरू कर दिए हैं, काउंटर इंस्टीट्यूशंस। अगर वहां आईएमएफ है तो यहाँ पे एनडीबी भी है। So the point is that Russia comes into picture. Russia having vast natural resources and military capability. It is very very important part of the global geopolitics. So US wants कि रशिया को थोड़ा सा साइडलाइन किया जाए. If Russia goes along with China, then there will be danger to the US geopolitics. सबसे important. So US is using this point also to help Ukraine, and also it want to discourage Sino-Russian strategic partnership. अगर हम कहें विदाउट लिमिट्स, विदाउट लिमिट मीन्स दोनों साथ हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का एंटी कौन हुआ? यूरोप हुआ और यूएस हुआ, तो भैया हम कहाँ जाएंगे? दैट इज वाई इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ। सो ग्लोबल साउथ का मतलब ये है कि ग्लोबल साउथ मस्ट बी लेड बाई कंट्रीज लाइक इंडिया, मस्ट बी लेड बाई पावर्स हु आर डेमोक्रेटिक इन नेचर। क्योंकि ग्लोबल साउथ के अंदर क्या क्या नहीं हुआ? इराक 2003, लेबनान 1982 2006, लीबिया 2011, अफगानिस्तान 2001 एंड 21, यमन 2010 एंड ऑन, सीरिया एंड माली। इसी से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं। कहीं पे कुछ हो रहा है, सिविल वॉर चल रही 10-10 सालों से, अखबार ने नहीं दी लेकिन आपको एग्जाम ने उठा के दे दिया। और डू नॉट फॉरगेट कोविड-19। दूसरा, चाइनाज एक्सपेंडिंग मिलिट्री फुटप्रिंट, यानी कि जहां जहां उसका मन किया वहां वहां उसने जो है पोर्ट में इन्वेस्ट किया, कब्जा किया, एयरपोर्ट्स बना दिए, पाइपलाइंस में किया, क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में किया। तो उसके अंदर वियतनाम है, इंडोनेशिया है, इंडिया है, फिलीपींस है, इनको ये चीज भाई नहीं है, ये नहीं चाहते ऐसा। फॉर एग्जाम्पल द सिक्योरिटी पैक्ट बाई चाइना विद पैसिफिक आइलैंड्स। पैसिफिक आइलैंड्स में कौन कौन से नेशन आ जाएंगे? प्लीज डू ओपन योर एटलस राइट नाउ, मस्ट बी केप्ट ऑन योर साइड। रोकिए वीडियो को एक सेकंड और देखिए कि पापुआ न्यू गिनिया और फिजी और सामोआ, टोंगा, वनाउता, सब कहाँ है? ये कुक आइलैंड्स और फेडरल स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। बिकॉज बिकॉज they were not ready to agree with the Chinese common development vision। भाई कॉमन क्या है इसमें? चाइना का भला हो रहा है तो कॉमन कहां से हो गया? अब इसीलिए यूएस ने, और यूएस हैज बीन पुटिंग लो सो मच प्रेशर ऑन द ऑन रशिया एंड चाइना आल्सो, उन्होंने अपना शुरू किया। तो यूएस जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट यूएस हैव डन, काउंटरिंग मैलाइन रशियन एक्टिविटीज एक्ट इन अफ्रीका। काउंटरिंग मैलाइन रशियन एक्टिविटीज एक्ट इन अफ्रीका एक्ट बोल रहा है, यानी जैसे कि वो दूध का धुला है।
सो इट इज प्रेफराइजिंग मॉनिटरिंग एंड पनिशिंग अफ्रीकन स्टेट्स जो कि रशिया के साथ काम करेंगे। तो बट साउथ अफ्रीका साइड, भाई ये नहीं चलेगा, ये ऑफेंसिव लेजिस्लेशन है, इट इज ऑफेंसिव लेजिस्लेशन। इंडिया ने भी तो एडू सेट से लेकर और इंडिया अफ्रीका समिट से लेकर कितना कुछ किया, पर इंडिया ने ऐसा कभी कुछ किया करने की हमारी वो भी होनी चाहिए, दैट वी आवर प्रायोरिटी होनी चाहिए, बट लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, पैलेस्टीन अंडर ऑक्यूपेशन, सो चाइना इज वेविंग द डेट ऑफ 17 अफ्रीकन कंट्रीज, इंडिया ने भी पहले किया है। इसीलिए पुश बैक है लेटिन अमेरिका और वेस्ट एशियन कंट्रीज का, पुश बैक है। सऊदी अरेबिया वर्सेस ईरान, श्रीलंका बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो स्ट्रॉन्गर ग्लोबल साउथ में इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंडिया इज परचेजिंग ऑयल फ्रॉम रशिया डिस्पाइट वेस्टर्न प्रेशर। सो इसीलिए इंडिया ने क्या साइन किया था, लिमोवा, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। लिमोवा यानी कि आप कहीं और जा रहे हैं भैया, यहाँ अपना सूटकेस बोरिया बिस्तर रखिए, हम मदद करेंगे, हम आपको रिफ्यूलिंग भी देंगे, आगे चले जाइएगा। लिमोवा। सिमिलरली रिमपैक, ये कीवर्ड्स हैं, रिमपैक, द रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइजेस। हमने कहा और भेजी फोर्सेस, वॉस्टॉक एक्सरसाइजेस में, वहां भी हमने भेजी। तो यानी कि इंडिया इज हैविंग मल्टीटास्किंग माइंडसेट। इंडिया इज इंडिया इज हैविंग ए फॉरवर्ड लुकिंग फॉरेन पॉलिसी एजेंडा। सो जियो पॉलिटिक्स ऐसी जियो इकोनॉमिक्स पे, तो यूएस स्ट्रेटेजी ऑफ फ्रीजिंग डॉलर रिजर्व्स, जैसे रशिया के साथ कर दिया भाई, हमारे साथ भी कभी हो गया तो कैसे करेंगे हम, तो फ्रेंडली यानी यूएस ट्रेड पॉलिसीज ऑफ रीशोरिंग एंड फ्रेंड शोरिंग। रीशोरिंग यानी कि ट्रेड बिटवीन एलाइज, अपने अपने दोस्तों के बीच में धंधा करना है। सो दैट इज वाई द ग्लोबल साउथ इज लुकिंग फॉर फाइंडिंग वेज कि बाईपास करो भाई डॉलर को। इसीलिए लोकल करेंसी में करने की बात होती है, इसलिए हमने क्या किया, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट इंडिया ने भी किया है, चाइना यूज करता है विद आसियान, इंडिया एंड रशिया इज हैविंग विद अदर कंट्रीज आल्सो। दिस डजंट मीन द डॉलर डोमिनेंस विल नॉट बी देयर, पर ये ओपन कर रहा है, जैसे इंडिया के जापान के साथ है, करेंसी स्वैप हैज बीन अ इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट ईयर। तो यानी कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन जैसे ब्रिक है वो भी ग्लोबल साउथ का हो गया, अफ्रीकन यूनियन हो गया, आसियान हो गया, कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट्स, इनके बारे में दो दो लाइनें अगर आपको पता हो तो कोई गलत बात तो नहीं है। सो फ्रॉम पीटी एंड मेंस एंड फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेट ऑफ थिंग्स। आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताने हैं भाई, 250 वर्ड के अंदर कोई भी आपको पॉलिटिकल साइंटिस्ट बनाने नहीं जा रहा और चाहिए भी नहीं। सिलेबस के जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं उसको लेके आइए, उसको आज के टाइम से जोड़िए और अपनी समझ से लिख दीजिए। वो जब ही लिख पाएंगे जब फोकस होगा, क्लैरिटी होगी और आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, नहीं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। Similarly, when we talk about different subjects, we provide different programs, we provide different kind of short term, long term support, but in a manner which will bring you success. We believe in active collaboration, active understanding. वो अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन एंड टू गेट सक्सेस। सो there has been a news item recently that honorable Raju Srivastava sir nahi rahe wo, and he was a great benchmark player, but the what I'm here discussing is from the sociological perspective कि कैसे वो सिर्फ मिमिक्री और कॉमेडियन नहीं थे जिसको हम जनरली करके हम वो कर देते हैं। मिमिक्री थी उनकी अनमैच्ड, उनको लोगों की पल्स पता थी, रिलेशनशिप डायनेमिक्स हमारी सोसाइटी के सोशल फैब्रिक को भी उन्होंने बहुत अच्छे से शो किया, लेकिन इक्वली इंसाइटफुल वाज हिज सटायर। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि उन्होंने जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग को किसी भी चीज के खत्म नहीं होने दिया। उन्होंने अपने आप को एक ब्रांड की तरह बना लिया एंड ही रिमेन्ड ऑथेंटिक इन द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, एंड दैट ऑथेंटिसिटी वाज रेयरली you know what I should say promoted in a direct way, because he was not trapped into his own brand. So that is why same thing is for India, सेम थिंग इज फॉर इंडिया। द वे इंडिया इज प्रेजेंटेड बाय द वर्ल्ड कि यहाँ तो लड़ाई हो रही है, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम ही हो रहा है, यहाँ तो यही हो रहा है, यहाँ तो वो हो रहा है, वो भी गलत है। सिर्फ राजू जी को कहना कि वो एक वर्नाकुलर एंटरटेनर थे, ये भी उनको पैसिव उससे देखना होगा। ही वॉज एन इनसाइटफुल थिंकर। वो पर काया प्रवेश एक शब्द होता है, पर काया प्रवेश यानी आप दूसरे के माइंडसेट और दिमाग और बॉडी में उतर जाते हो फिर घूम के बाहर आ जाते हो। सो सिमिलरली इज फॉर द इंटरनेशनल नैरेटिव ऑफ इंडिया। इंडिया भी ऐसा ही ब्रॉड माइंडेड है, इंडिया भी ऐसा ही एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस को शो करता है, इंडिया भी ऐसी एक डाइवर्सिटी शो करता है। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 4 पर्सपेक्टिव। अगेन
from the जनरल स्टडीज पेपर 4 एंड ऑल्सो फ्रॉम द पर्सनैलिटी टेस्ट पर्सपेक्टिव कि इतने सारे सीईओज इंडिया के जो है कैसे घुस जाते हैं, कैसे आ जाते हैं आपके बड़े बड़े उसके। तो लक्ष्मण नरसिम्हन हु इज द न्यू सीईओ ऑफ स्टारबक्स। तो क्वेश्चन आता है इतने सारे पीआईओ कैसे बन जाते हैं ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर के। तो इंडिया क्या है, इंडियंस आर बेटर अडेप्ट एट मैनेजिंग डाइवर्सिटी एंड एडवर्सिटी देन दोज लिविंग इन मेनी अदर कंट्रीज। जनरल स्टडीज पेपर 1 सोसाइटी में डायरेक्ट आता है, सोशियोलॉजी का भी डायरेक्ट एस्पेक्ट है ये, बोथ रूरल एंड अर्बन। हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, एडवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है। एवरी स्फीयर ऑफ इंडियन लाइफ, लिविंग इन ए लार्ज जॉइंट फैमिली, अपने आप के लिए स्ट्रगल करना, एडमिशन कॉलेज के लिए स्ट्रगल, उसके बाद स्कूल के लिए स्ट्रगल, उसके बाद यूपीएससी के लिए स्ट्रगल। तो हम स्ट्रगल बचपन से ही करना सीख जाते हैं। आईआईटी आईएम्स तक जाने के लिए, फिर स्टील फ्रेम आईएएस आईपीएस आईएफएस भी हो, उसके लिए भी हमें स्टडी करना पड़ता है जैसा कि हम कर रहे हैं। सो पॉइंट ये, वी आर द बेटर मैनेजर्स, वी आर द बेटर मैनेजर्स एंड वी मैनेज अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरमेंट्स। है ना, कीवर्ड क्या आया यहाँ पे, अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरमेंट्स। वी ऑल्सो follow जुगाड़ system, non-wasted of resources, and always have a plan B. We learn to embrace data and how to filter लाइफ में क्या रखा है, कैसे कोशिश करनी है, बेटर एट डिजास्टर मैनेजमेंट, बेटर एट डिलीजेंस। मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये आइडियाज देखने पड़ेंगे, तभी आप इंडियंस के इननेट स्किल्स और वैल्यूज को आप वैल्यू कर पाओगे। जैसे फैमिली वैल्यूज, वर्क एथिक, रिस्पेक्ट फॉर मेंटोर्स, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, आगे बढ़ना। आई थिंक ये सारी की सारी बातें यूपीएससी के एग्जाम के लिए भी उतनी ही वैलिड हैं। जितना बोलने में आसान है, उसको प्रैक्टिस करने में उतनी मेहनत लगती है। तो लेट्स डू इट रादर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट इट। अगर हम बात करें पेशेंस की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है सिविल सर्वेंट के लिए, तो पेशेंस का ओरिजिनली वर्ड लेटिन वर्ड से सफर से आया। उसका मतलब पैसिविटी होता है कि आप शांति रखिए। तो प्रिविलेंट वर्क रूटीन जो है वो एक ऐसा एटमोसफियर कर देता है जिसमें आप जो है, आप पेशेंस को वीकनेस माना गया है। लेकिन गांधी जी ने बोला है, टू लूज पेशेंस इज टू लूज द बैटल। तो पेशेंस से आपको कंटेंटमेंट आता है, अचीवमेंट आती है। जैसे नेचर है, नेचर भी बहुत पेशेंटली वेट करता है, जब तक आप बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ नहीं करते देन इट डजंट रिएक्ट। सक्सेस इज आल्सो बिल्ट विद ब्लॉक्स ऑफ पेशेंस, सो वंस पेशेंस हैज टू बी प्योर। तो भगवत गीता में कहा गया है कि पेशेंस इज अ कंट्रोल ऑफ माइंड, इट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ कंट्रोल। लिटिल बाय लिटिल थ्रू पेशेंस एंड रिपीटेड एफर्ट, माइंड अपने आप में शांत हो जाता है। सिविल सर्विसेज के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। जैसे बी जो है फूल से कलेक्ट करती है एक एक कण कण, और उससे जो है हनी बनता है, हनी कॉम में। विदुर ने भी महाभारत में कहा है धृतराष्ट्र को कि भैया युधिष्ठिर की पेशेंस को अंडर एस्टिमेट ना कीजिए, क्योंकि रॉन्गफुल बिहेवियर वीकनेस हो सकता है, पेशेंस वीकनेस नहीं हो सकती, क्योंकि पेशेंस धर्म के अंदर जुड़ी होती है। पेशेंस आदमी को विश्वास दिलाता है अपने क्रोध के ऊपर और अपनी नेगेटिव स्ट्रेंथ के ऊपर करने के लिए। सो दैट इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल्स वी आर सीइंग। तो पेशेंस इज सिंपली वेटिंग। स्लीप जो है, सोना अपने आप में बकवास लगता है, लेकिन मोस्ट एसेंशियल एक्टिविटी है। सिमिलरली पेशेंस, इट इज द स्टेट ऑफ साइलेंस इन विच म्यूजिक ऑफ लाइफ कम्स। सो ये ऐसे में आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं, कोट कर सकते हैं। ओके okay. अब जैसे हम आपको बता दें, देयर इज अ स्टोरी, अ बॉय लव्ड मैंगोज। वो मैंगो लेके आया, बेस्ट मैंगोज के सीड से उसको प्लांट कर दिया। हर रोज वो हर रोज धरती खोदता और देखता कि स्प्राउट हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए सीड कभी स्प्राउट ही नहीं हो पाया। तो इम्पेशेंस ऐसे ही होता है। रोज आप काम करते हो, रोज खुद को क्वेश्चन करते हो, क्या करते हो, क्या सोचिएगा और बताइएगा। कमिंग फर्दर, वी आर डिस्कसिंग कि 5 डे का मिलिट्री ऑपरेशन जो हमने पहले भी कहा था, दैट इट वाज अ ग्रेट ऑपरेशन कॉल्ड ऑपरेशन पोलो, जिसके द्वारा हैदराबाद वाज इंटीग्रेटेड इनटू यूनियन ऑफ इंडिया। तो आप जो प्राइवेट आर्मी निजाम की थी, राजाकर्स, उसको भी फोर्स किया था। मिलिट्री एक्शन बाय इंडिया विच इज कॉल्ड ऑपरेशन पोलो बाय द देन ऑनरेबल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार पटेल, जो कि निजाम के एटीट्यूड से बिल्कुल खुश नहीं थे। एंड देन आफ्टर सरेंडर, आप कह सकते हैं मेजर जनरल जे एन चौधरी, कमांडर ऑफ द फर्स्ट आर्म डिवीजन ऑफ इंडियन आर्मी, जे एन चौधरी, कमांडर ऑफ द फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन ऑफ इंडियन आर्मी, उनको मिलिट्री गवर्नर अपॉइंट किया गया था। और ये लगा लीजिए, सरेंडर करने के बाद जनरल चौधरी, जनरल सईद अहमद एल्द्रोस, कमांडर जो राजाकर्स थे, वो जो है गए और उन्होंने चीयर किया और भारत का झंडा फतेह हुआ, लगाया गया।
मिनिस्टर्स ऑफ लाइक अली कैबिनेट जो उस टाइम के थे उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया। ऑल आर्म्स बिलोंगिंग टू हैदराबाद आर्मी जो कि गोलकुंडा फोर्ट में थे वो इंडियन आर्मी को सरेंडर कर दिए गए। जनरल चौधरी जो है ब्रॉडकास्ट किया, हैदराबाद रेडियो पे समझाया कि ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडियन आर्मी का। एक्चुअल सरेंडर सेरेमनी जो है वो जो है थोड़ी देर के लिए डिले हुई क्योंकि शोलापुर हैदराबाद रोड को हैवीली माइन कर दिया गया था। माइनिंग जो है निजाम फोर्सेस ने की थी। उसके बाद जो है उन्हें ये पता नहीं था कि भाई इसको क्लियर कैसे करेंगे, इसलिए 5 घंटे लग गए थे इंडियन सैपर्स को, इंडियन आर्मी जवानों को, माइनर्स को क्लियर करने के लिए ताकि सेफ पैसेज हो सके। और उसके लिए एक्चुअल सरेंडर सेरेमनी बाद में हुई। तो वास्ट मेजोरिटी ऑफ निजाम की आर्म फोर्सेस था, उन्होंने आर्म अपने अबंडन कर दिए, बटालियन छोड़ दिए और उसके बाद सब खत्म हो गया। निजाम गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी की ट्रूप्स को रोकने के लिए उन्होंने लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर भी छोड़ दिया था मोती रिवर के अंदर कि ऐसा फ्लड आएगा कि इंडियन आर्मी की प्रोग्रेस रुक जाएगी। लेकिन साउदर्न कमांड हेडक्वार्टर पूना ने सीज फायर के ऑर्डर के बाद कहा कि भाई जो है इंडियन ट्रूप्स जो है सिकंदराबाद जाएंगी, उसके बाद जो है सारी चीजें हमारे हिसाब से प्लानिंग के कंट्रोल के हिसाब से हुई। सो पॉइंट इज दैट कि इतना कुछ हमने किया, इतना कुछ हमने हमने प्लानिंग के साथ किया, भारत वर्ष के लिए किया, हमने भारत देश के लिए किया, हमने अपनी कंट्री के लिए किया, हमने फ्यूचर जनरेशंस के लिए किया, एंड वी मस्ट बी प्राउड ऑफ इट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की कि भाई अब जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें 5 प्रण हैं हमारे 2047 तक, जब तक आप सिविल सर्विसेज में चले भी जाएंगे तब तक आपकी बहुत लंबी सर्विस भी हो जाएगी। लेकिन ये 5 प्रण की जब हम बात करते हैं तो 5 इंग्रेडिएंट्स क्या हो सकते हैं, मैं आपको जल्दी से बताता हूं ताकि आप इसको यूज कर सके अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी लर्निंग के लिए। एक, हम हाई इकोनॉमिक ग्रोथ का लेवल अचीव करें, हम जो है आईएमएफ की डेफिनेशन से आगे चले जाएं, और हम जो है एक मिडिल लेवल कंट्री से अपर की तरफ चले जाएं। तो इसीलिए जो है जो हमें इंडिया को 8 से 10% की परसेंटेज जीडीपी के साथ ग्रो करना पड़ेगा नेक्स्ट 25 ईयर्स के, ताकि हमारे लाखों लोग जो हैं उनके लिए इनकम आए, उनके लिए जॉब्स आए और वो गरीबी रेखा से ऊपर भी हो जाएं। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सो इसीलिए जो हमारा कैपेक्स का बहुत बड़ा रोल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बहुत बड़ा रोल है, एवरेज इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, एवरेज इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो जो लास्ट डिकेड का था 5.8 और करंटली 4.1 है, वो हमें सिग्निफिकेंटली प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट के लिए करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? वो ट्रेड से होगा। ट्रेड कैसे होगा? जैसे मैंने आपको स्कीम्स बताई, आप द प्रेजेंट मोदी सर की गवर्नमेंट की आप स्कीम सोचिए, चाहे वो लॉजिस्टिक्स की हो, चाहे फिर वो हाईवेज के लिए हो, चाहे फिर वो एलएनजी के लिए हो, चाहे फिर वो आत्मनिर्भर भारत की फिलोसफी हो, ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। ग्लोबल वैल्यू एडिड चेन, हमने सेमीकंडक्टर पॉलिसी की बात की, हमने हाइड्रोजन पॉलिसी की बात की, ये सब आ जाएगा आपका पहला प्रण। दूसरा प्रण आएगा आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, उसमें तीन कौन कौन से मैट्रिक्स आते हैं, ये ऑलरेडी वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस आई हैव डिस्कस्ड, गो एंड वॉच इट, आप देखिए। उसके बाद हमने हेल्थ एजुकेशन इनकम की अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद क्या होगा? पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, पीटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, इट हैज ऑलरेडी बीन देयर इन द प्रीलिम्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, हमें एचडीआई स्कोर को बढ़ाना पड़ेगा। हम अभी 0.645 पे हैं, हमें जो है 0.8 तक जाना पड़ेगा, तब हम हायर लेवल पे जा पाएंगे। एनईपी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, दे आर द इंडिकेटर फॉर इट। तीसरा, क्लाइमेट क्राइसिस, यानी नेट जीरो से हमें कार्बन, हमने हमने अपने कार्बन फुटप्रिंट कम करना है। हमारा मोड ऑफ ट्रेवल, हमारा डेवलपमेंट, हमारा यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर, हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी इसमें आ जाएगा, और डिजास्टर मैनेजमेंट, सब चीजें आ जाएंगी। सो ये जो मैंने आपको बताया है, सारे के सारे जो मैंने आपको गोल बताए, दे ऑल आर लिंक्ड विद आवर बिकमिंग अ ग्रेट नेशन। सो एल्बर्ट आइंस्टाइन राइटली सेड, लर्न फ्रॉम यस्टरडे, लिव फॉर टुमारो, लिव फॉर टुडे एंड होप फॉर टुमारो। ऐसा करके आप अपने एस्से को भी एंड कर सकते हैं, ऐसा करके आप एथिक्स को भी एंड कर सकते हैं। और जो मैंने इसमें कीवर्ड्स बताए वो आपके अलग अलग जनरल स्टडीज की कॉपीज में जो जो आपने स्टैटिक पोर्शन से पढ़ा है, चाहे आपने वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ा हो, चाहे फिर आपने यू नो जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके एनवायरनमेंट के वो आपने पढ़े हो, दे विल बी लिंक्ड विद द मेंस एग्जाम आल्सो। One thing I would like to discuss here, Jhulan Goswami, great legend, a great player. She started her test debut in 2002 और अभी 2022 में लॉर्ड्स में आज वो अपने फाइनल गेम को खेल रही हैं। She became India's captain also. She is the first woman
क्रिकेटर जिनको दियाना एडुल्जी के बाद पद्मश्री मिला, ध्यान रखिएगा, और उनको 2010 में अर्जुना अवार्ड भी दिया गया था, और शी इज अ रोल मॉडल फॉर इंडियन क्रिकेट, नॉट जस्ट फॉर द वुमेन क्रिकेट। इन टर्म्स ऑफ केस स्टडी जब हम बात करते हैं, इन टर्म्स ऑफ केस स्टडी ऑफ जनरल स्टडीज पेपर 4 एंड ऑल्सो अदरवाइज ऑल्सो, कि GEMs आर नो लॉन्गर शाइनिंग एट MBA। GEM मीन्स जनरल इंजीनियर मेल, वो अब नहीं है। अगर आप देखेंगे कैट के अंदर देर इज अ डाइवर्सिटी, पीपल कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड, और जेंडर डाइवर्सिटी भी हो रही है, बिकॉज इट इज शोइंग द काइंड ऑफ डिमांड एंड द काइंड ऑफ थिंग्स विच आर वर्किंग फॉर आवर कॉर्पोरेट सिस्टम एंड ऑल्सो फॉर you know for our industrial development, for our knowledge economy and so forth. Last point before we wind up, कैसे आज के टाइम में, this is very good discussion from the perspective of economics optional and also from the perspective of what is required for understanding कि आज के डेट में इकोनॉमिक पॉलिसीज का की पॉइंट क्या होना चाहिए. There must be interaction between economics and anthropology, because without understanding the usage of data, why big data is so important for making microeconomics, ये समझना बहुत जरूरी है. बिग डेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और इकोनॉमिक्स का जो रोल मॉडल है वो इकोनॉमिक्स की जो पॉलिसीज हैं वो बिहेवियर और सोसाइटी के साथ लिंक और होना चाहिए. It is not that you are just sitting in a in under your four walls and you are actually thinking that these things will work the way you want. That is why it is being argued that in order to be successful nation, our prime minister, like the way he is understanding the demand, he is understanding the value, he is understanding the aspirations of the masses. Similarly, bureaucracy must also understand ki what is the demand, what kind of policy will work, what is required. For example, there is an argument that पहले क्या था, 50 से 55% इनकम आपकी फूड, रेंट, हेल्थ और एजुकेशन पे चली जाती थी, लेकिन वो अब बढ़ चुकी है. ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, एनर्जी, इन पर अब बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है. देयर इज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द हाउस होल्ड सेविंग रेट विच इज ड्रॉपिंग इन द लास्ट 15 years. हाई फिक्स्ड कॉस्ट प्लस हाई टैक्सेस, हाई फिक्स्ड कॉस्ट प्लस हाई टैक्सेस, तो आप सेव क्या कर पाओगे? तो saving and expenditure patterns has got sociological basis. That is why personal income tax policy, other things must also reflect the same kind of changes which is not visible. Another example is Tata Nano car. टाटा नैनो कार बहुत बढ़िया थी, खूब चली, लेकिन जैसे ही ये बात फैली कि ये पुअर मैंस कार है, टाटा ने नैनो का खत्म कर दिया. अदरवाइज इट वाज वंडरफुल, बट इट वाज एन एग्जांपल ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का वो नेग्लिजेंस था. कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी नए प्रोग्राम लोगों के लिए, ये एक सोचने की बात है. अदरवाइज ये भी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है कि डीमोनेटाइजेशन में लोग क्यू में भी खड़े हुए, लोग लड़े भी, लोग मरे भी, लेकिन फिर भी अगेन NDA 2 गवर्नमेंट केम इनटू पिक्चर. ये भी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स ही है. हाउ यू सी, यूपीएससी में सिलेक्शन भी हो रहे हैं, राइट अप्रोच से भी हो रहे हैं, और स्मार्ट स्ट्रेटेजी से हो रहे हैं, ये भी एक बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है. तो अपना बिहेवियरल इकोनॉमिक्स देखिए, उसके लिए क्या स्टेक पे लगा सकते हैं, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, कैसे सक्सेस पाएंगे. सी यू सून. प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग. Wishing all of you all the best.